Welcome dear students. Now you are watching lecture number 15 of physics subject of 10 plus 1 class, and it is from unit number 2, chapter 3 of plus 1 class. Today we are starting the concept of speed. So first of all, let us know about what is speed. I hope all of you have studied this in 9th class. So today we shall have a recap of that definition and some advanced study of the term speed. So what is speed? The simplest definition of speed we have written is like this. The rate of change of position with time in any direction is called speed, right? Now let us understand it. Let us suppose that I have a straight path and one car is standing at this point, and let it starts to move in this direction when there is a time of 1 a.m., right? Midnight. And after some time, let us say at 2 a.m., this car reaches at this point. So this car has traveled some distance from point A to B. Say this is point A and this is your point B. So car has traveled some distance from point A to B. We call it as a distance traveled. क्या कहेंगे हम इसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड भी कह सकते हैं. एंड 1 a.m. to 2 a.m. the car has taken some time to move from point A to B. That time we shall call it as a time taken. ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे? टाइम टेकन. So and one more thing, we know that here this car is in motion. That means car is changing its position with respect to its surrounding. So we have studied the three terms here. We have observed 3 points here that number 1, car was in motion. Number 2, car covers some distance. And number 3, car takes some time to cover this distance. So at what rate this distance is covered? Whenever we talk about the rate with time, that means rate of change of position, that means change in position with time, that means we divide the quantity related to position with the quantity time. जब भी हम लोग रेट की बात करेंगे बच्चों, टाइम रेट की, तो समझ लेना वहां पर हम लोग रेशो निकाल रहे हैं. ठीक है, किसकी रेशो निकाल रहे हैं? जिसकी रेट की बात हो रही है उसकी रेशो निकाली जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात की डिवाइड बाय टाइम टेकन, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, दैट मीन्स हमने क्वांटिटी डिफाइन की यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. This distance covered upon time taken is termed as
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, and this term in physics is termed as the speed of the object. Speed of the object, right? So my dear students, we name this quantity as a speed of the object, right? So how did you define the speed? We defined the speed as the rate of change of position with time in any direction. In any direction we are talking here because in speed we just calculate the distance covered. Just like let us say object is going from here to, let us say this is a zigzag path. Object starts from point A and stops at point B, and that is going along this path. Then we are just to calculating its distance traveled, total distance, actual length of the path, divided by the time taken. That we know, that we call as a speed. उसे हम लोग speed कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पता नहीं होगी, तो जस्ट यू कैन रिमेंबर हियर दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. So after the completion of this topic, we shall discuss about the scalars and vectors also. तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तब तक आपको मान के चलना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते. वी डोंट टॉक अबाउट द डायरेक्शन. हम यहाँ पर कार की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है. वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. एक बात हमें ये पता चली. दूसरी बात हमें पता चली कि स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. तीसरी बात हमें ये पता चली कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट. अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पीड का फिजिकल मीनिंग क्या है. व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पीड. फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पीड. फिजिकल मीनिंग की जब हम बात करेंगे तो हम डेफिनेशन से पता लगाएंगे. इट्स वेरी सिंपल दैट इट गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम. इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 यूनिट ऑफ टाइम. 1 यूनिट ऑफ अ टाइम. और 1 यूनिट ऑफ टाइम का मीनिंग क्या हो गया. व्हेन यू विल टॉक अबाउट द एसआई सिस्टम, आप 1 यूनिट को 1 सेकेंड लेंगे. जब आप सीजीएस की बात करेंगे तो भी आप 1 यूनिट को 1 सेकेंड ही लेंगे, ठीक है. because in both SI and CGS system the unit of time is a second, so unit means 1, and according to the system of unit we consider it's a unit, but you will take only the magnitude as a 1, right. So let us say I am taking some examples. I have a distance between two points A and B, and later here is a car 1 and here is a car 2. We have the two cars traveling on the same path. One car, let us say, takes time 10 seconds, and car number 2 takes time 20 seconds to cover this distance of, let us say, 50 meter from point A to point B. So you can say that कि कार 1 ने 50 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर किया और कार 2 ने वही 50 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकंड में कवर कर लिया. तो किसका स्पीड ज़्यादा हुआ. ऐसे देखने से लग रहा है हमें कि कार 2 ने ज़्यादा समय लिया, कार 1 ने सेम टाइम लिया. तो हम कह सकते हैं कि कार 1 की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस आपका बराबर है. लेकिन जब आप स्पीड निकालेंगे तो वहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा. स्पीड ऑफ कार 1
इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 50/10। 50 मीटर है और 10 सेकेंड में है, दिस बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। यू विल रीड इट एज अ 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर एंड पर यूनिट हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं। सिमिलरली we can see that speed of car 2 is, distance traveled is same, but time taken is now 20 seconds. So what does this become? ये कितना बन जाएगा यहाँ पर देखिए, this will become 2.5 मीटर पर सेकेंड। So it is clear that ये जो 5 मीटर आया या ये जो 2.5 मीटर आया, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 1 सेकेंड में। दैट इज, दिस इज द, ध्यान से समझिए, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। दैट इज कार 1 1 सेकेंड में 5 मीटर चलती है और कार 2 1 सेकेंड में 2.5 मीटर चलती है। इसका मतलब कार 2 कम जा रही है और कार 1 ज्यादा जा रही है, तो कार 1 की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि सम कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस इज दैट दिस कार विल cover 20 kilometer in 1 hour, that is a 1 unit of time। अब unit of time यहाँ पर hour लिया गया है, तो ये 1 hour लिया जाएगा। we shall take only the unit value, और distance जितना हमें दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये कार 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ अ स्पीड। तो मोर ओवर यूनिट्स हम लोग जान चुके हैं, इसके सभी जानते हैं। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाते हैं, सीजीएस यूनिट इसके सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, और जहां तक डायमेंशनल फॉर्मूले की बात है, m0 LT-1, आई होप नो नीड टू टेल दिस, सभी को आता होगा। सो लेट अस मूव फर्दर। अब हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो है स्पीड का, वो है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल distances in equal intervals of time, covers equal distances in equal intervals of time, then speed is known as the uniform speed। ठीक है, what does it mean? Let us say that we have a path, there are station A, B, C, D, and let us say E. All these stations are at a distance of 10 meter। इन सभी स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है। And let us say one car is moving from A to B, then B to C, then C to D, and then D to E। तो A से B तक आने में कार मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम लेती है, B से C तक जाने में भी 2 सेकंड का टाइम लेती है, C से D पर पहुंचने में भी 2 सेकंड्स का टाइम लेती है, और D से E पर पहुंचने में भी 2 सेकंड्स का टाइम लेती है। Then our distance covered are 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, and time taken for each distance is 2 second, 2 second, 2 second, and 2 second। That is, each time when distance is same,
your time taken is also same. So each time, if you will find out the speed, that is speed from A to B, this will become 10 upon 2 is equal to 5 meter per second. Here from B to C, this will again become 10 upon 2, that is 5 meter per second. Similarly, here speed will become 5 meter per second, and in this distance, speed will again become 5 meter per second. So in each interval of time or each interval of distance, we are saying that speed is equal, that is 5 meter per second. So such motion is known as a यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड. मोशन भी क्या देते हैं हम कई बार इसे, तो आप इसे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, तो फिर मेरे बच्चों ये इस तरह से होगा. इफ बॉडी कवर्स equal distances in unequal interval of time, unequal interval of time, बोलने का मतलब कि डिस्टेंस कवर जो हैं वो तो बराबर होंगे, लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो बराबर नहीं होगा. यहीं पर एग्जांपल लेते हैं. देखो, लेट अस टेक एग्जांपल हियर. डिस्टेंस हम 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर रख लेते हैं, लेकिन लेट अस से पहली बार उसने 2 सेकंड में कवर कर लिया. दूसरी बार में मान लीजिए वो 5 सेकंड का टाइम लेता है. तीसरी बार में मान लीजिए वो 4 सेकंड का टाइम लेता है. और लास्ट टाइम में मान लीजिए वो 10 सेकंड का टाइम ले लेता है. दैट मीन्स पहले 10 मीटर को कवर करने में 2 सेकंड का समय लगा. तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 अपॉन 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट 10 मीटर के डिस्टेंस को उसने 5 सेकंड में कवर किया, दैट इज 10 अपॉन 5, दैट इज वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड. अब यूनिट टाइम में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये इंटरवल उसने सबसे तेज ट्रेवल किया. अभी देखेंगे आगे. नेक्स्ट 10 मीटर को वो 4 सेकंड में कवर करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट 10 मीटर को 10 सेकंड में कवर करता है, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल नहीं होते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो अलग अलग आती है. फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट स्टेशन के लिए या फर्स्ट 10 मीटर के लिए 5 मीटर पर सेकंड हुई, नेक्स्ट के लिए 2 मीटर पर सेकंड हो गई, नेक्स्ट 10 मीटर के लिए 2.5 मीटर पर सेकंड हो गई, नेक्स्ट 10 के लिए 1 मीटर पर सेकंड हो गई. तो इस तरह की जो स्पीड है उसे आप लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. क्या कहेंगे बच्चों उसे आप लोग? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी क्या देते हैं, ठीक है. अब डेफिनेशन इसकी ऑपोजिट भी बन सकती है कि अगर इस डेफिनेशन में था इक्वल डिस्टेंस थे तो टाइम इंटरवल अनइक्वल था, और अगर आप यहां पे लिख दें अनइक्वल डिस्टेंसेस, देन इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम के इंटरवल तो हमने इक्वल बना लिए, जैसे 2-2 सेकंड का कर लेते हैं हम लोग, 10-10 सेकंड का कर लेते हैं, 1 आवर का कर लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनइक्वल है, तो भी आपकी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पाथ आ गया, स्ट्रेट लाइन पाथ ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए. अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट 1 आवर का टाइम लेता है, और इस 1 आवर में ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है. अब नेक्स्ट 1 आवर में ऑब्जेक्ट
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 1 आवर का ही टाइम लेता है, लेकिन डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। मतलब टाइम इंटरवल तो बराबर रहा 1 आवर का, लेकिन डिस्टेंस यहाँ 5 किलोमीटर था, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट 1 आवर की हम बात करें, मान लीजिए नेक्स्ट 1 आवर में वो 1 किलोमीटर ही जाता है, तो फर्स्ट आवर में या फर्स्ट इंटरवल में वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट में कितनी हो गई उसकी वेलोसिटी, 1 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमने 1 आवर में निकाला है तो सीधा डिवाइड करके वही आ जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपकी जो स्पीड है, सॉरी मैंने वेलोसिटी वर्ड क्या दिया, वेलोसिटी स्पीड लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन में बहुत डिफरेंस होता है वैसे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो हियर वी आर सीइंग दैट डिफरेंट distances are covered or unequal distances are covered in equal interval of time, so we name them as what, हम इसे भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही कहेंगे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एक और नाम होता है जिसे हम लोग वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं, we name it as a वेरिएबल स्पीड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी। जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल करता है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करता है, तो कभी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी, तो हम उसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन करके उसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, ये हमारी एक वेरिएबल स्पीड थी, ठीक है। ये एग्जांपल फिगर आपके सामने लाया, इसमें उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर, और टाइम कितना लिया उसने टोटल, 2 प्लस 5 7 प्लस 4 11 प्लस 10 21 सेकेंड। मतलब उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, 40 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना लिया उसने, 21 सेकेंड। तो जब हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो टाइम रेट निकालते हैं टोटल टाइम टेकन के साथ, तो उसे हम लोग उसकी एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड SAV लिख देते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया आपका वेरी सिंपल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड या मूव्ड, जो भी आपको पसंद है वो लिख दीजिए, जो आपको पसंद है, टोटल टाइम टेकन, राइट। तो इस केस में अगर ये आ गया आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। जब हम 40/21 कैलकुलेट करेंगे इस केस में, अपने वाले केस में जो यहाँ पर एग्जांपल था हमारा, तो जब आपने यहाँ पर 40/21 कैलकुलेट किया तो ये अप्रॉक्सीमेट 0.49 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सॉरी 1.49, let me divide it, अप्रॉक्सीमेट 1.89 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1.89 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड है। अब अगर वो इस एवरेज स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो वो 21 सेकेंड का टाइम लेगा, लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो उसकी स्पीड जो है कहीं 1.89 से ज्यादा आ रही है, तो कहीं पर इससे कम आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो एवरेज से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, और सेम भी हो सकती है, मे बी सेम। सो यहां पर 2 केस आते हैं, इफ actual speed
at every point of path is same to that of एवरेज स्पीड। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा होगा। अगर पाथ के किसी भी पॉइंट पर किसी भी डिस्टेंस इंटरवल में उसकी स्पीड एवरेज के बराबर आती है तो आप कहेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। इस पॉइंट को याद रख लीजिए। दैट मीन्स कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड से कम भी हो सकती है, एवरेज स्पीड से ज्यादा भी हो सकती है और एवरेज के बराबर भी हो सकती है, लेकिन सभी पॉइंट्स पर बराबर नहीं होगी। अगर सभी पॉइंट्स पर बराबर आ गई तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड वो कहलाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। एक और स्पीड का टाइप आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। लास्ट फोर्थ टाइप इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। समय के किसी भी इंस्टेंट पर, व्हेन द टाइम इंस्टेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, that is in very very small time interval, in very very smaller time interval is known as the instantaneous speed। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बस में बैठकर ट्रैवल कर रहे हो हिली एरिया में, तो जैसे प्लेन रोड आता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड आता है तो स्पीड बढ़ जाती है, टर्न आता है तो स्पीड कम हो जाती है। अगर रोड उबड़ खाबड़ आ जाए, उल्टा सीधा आ जाए, ठीक है, जैसे लेफ्ट राइट टर्न है बहुत सारे, तो वहां पे स्पीड एकदम कम हो जाती है। तो कहीं पर स्पीड एकदम ज्यादा हो रही है, कहीं पर स्पीड एकदम बढ़ जा रही है, कहीं पर कम हो जा रही है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, बस की स्पीड क्या है, कार की स्पीड क्या है, उस टाइम पर हम लोग उस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो। स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज डेल एक्स अपॉन टाइम टेकन दैट इज डेल टी। दो क्वांटिटीज के डिफरेंस को डेल से डिनोट किया जाता है। सो डेल एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डेल टी इज द टाइम टेकन। बट if we consider del t very very small का मतलब है टेंडिंग टू जीरो। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, फर्स्ट टाइम अब आप इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे डेल टी इक्वल टू जीरो एंड डेल टी टेंडिंग टू जीरो, एक एरो लगा देते हैं और इसे हम पढ़ते हैं डेल टी टेंडिंग टू जीरो, और इसे हम लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिमिट। तो कैसे रीड करेंगे इसे? लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। क्या रीड करेंगे, मेरे साथ बोलिए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। क्या मीनिंग होता है इसका? डेल टी इक्वल टू जीरो का मतलब है डेल टी बिल्कुल बराबर है जीरो के, ठीक है। और डेल टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि जीरो के आसपास है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। आ रही बात समझ में? जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के आसपास है, वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत जगह हो जाता है, जैसे मैं लिख देता हूं एक्स टेंडिंग टू 5, इसका मतलब x 5 के बराबर नहीं है लेकिन 5 के आसपास है। 5 के आसपास का मतलब हो गया वो 4.999 हो सकता है, या वो 5.111 हो सकता है, 5.01 हो सकता है, 5.002 हो सकता है। मतलब वो 5 के बिल्कुल नजदीक हो सकता है लेकिन 5 के बराबर नहीं हो सकता। तो जब कोई क्वांटिटी किसी पार्टिकुलर नंबर के बराबर नहीं होती है और उसके आसपास कहीं होती है तो उसे हम लिमिट में लिखते हैं, और उसे हम लिखते हैं एक्स टेंड्स टू दैट वैल्यू और डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो अब यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिए, देखो अब s को हम लोग लिखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब इस डेल टी को मैं बहुत स्मॉल कर देता हूं, दैट इज वी आर टेकिंग अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। अब वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का मतलब है मैं डेल
लिमिट डेल टी को टेंडिंग टू 0 बना देता हूं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। किसका फॉर्मूला हो जाता है? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का, सॉरी नॉट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। और हम अगर मैथमेटिक्स में शिफ्ट कर दें तो इसे हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी कहते हैं, जिसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर के बीच बीच में आएगी। जब कोई दो क्वांटिटीज का वेरिएशन del x upon del t with respect to one another such that denominator is very very small, that is tending to 0, then that is known as the differentiation of numerator with respect to the denominator, that is dx upon dt। ठीक है, क्वांटिटीज का चेंज बहुत ही स्मॉल होता है तो उसे हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते हैं dx अपॉन dt। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये एक ऑपरेटर बन जाता है। जैसे हमारे पास प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेटर होता है, वैसे ही dx अपॉन dt एक डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है, जो कि हम फॉर्मूले में पढ़ेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 4 टाइप ऑफ स्पीड्स आ जाती हैं। ध्यान से पढ़िए, पहला टॉपिक था स्पीड का, थोड़ा बहुत लेंथी हो गया 30 मिनट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और लेंगे तो उसे जल्दी से कवर करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए एंड देन वी शैल डू सम नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।